नमस्कार, स्वागत है सभी का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर। पहले आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर दूं जिसके लिए आप बहुत परेशान रहते हो। अब वो डाउट ये है कि लिटरेचर की क्लास रोज क्यों नहीं होती है। लिटरेचर की क्लास हमारे इंस्टीट्यूट में कभी भी डेली नहीं हुई। पॉइंट नंबर 1, हम जनरली ऑफलाइन क्लासेस नेट के बैच में 3 डेज देते हैं और टीजीटी पीजीटी के बैच में 2 डेज देते हैं। राइट, वीकेंड्स में हमारी लिटरेचर की क्लासेस होती थी। रेस्ट ऑफ द डेज DSSB में या नेट के पेपर में जनरल पेपर की क्लास होती थी। पॉइंट नंबर 2, सिलेबस पूरा करा पाएंगे कि नहीं। तो आपको एक बात बता दें कि आप पेड बैच के हैं, आपने एडमिशन ले लिया है, तो इट्स माय ड्यूटी नाउ, यू हैव टू बिलीव इन मी। आपको मेरे ऊपर भरोसा करना होगा सिलेबस पूरा करने के लिए। एंड आई थिंक आई एम much experienced. I have more experience than you, so you have to believe in me. You don't have any option. Let the examinations date be announced, and before the announcement of the date, your syllabus will be covered. Those students who are preparing for PGT, they think that their syllabus is huge and we will not be able to cover the syllabus within time. Then let me tell you once again the same point, that we don't have any specific date. And if the date comes, then the video that you are getting daily of 50 minutes or 45 minutes or 55 minutes, it will be 2 to 3 hours videos. And then I'll be on live. Don't worry. Don't take pain. Don't take tensions. Right? It's my duty and I'll be do that properly. And I know how to do that. And perhaps better than you. So be confident, keep on revising your syllabus, that keep on watching those videos that I give you. जो आपको मिलती है उसको आप watch करते रहिए. I always try to give you video, but sometimes it happens because of some technical issues or because of some personal problems. I am unable to prepare videos. That's why you didn't get, you don't get, and you won't get, right? और दूसरी बात ये बता दें कि हम वो इंस्टीट्यूट नहीं है जो एक बार वीडियो बना लिया और आपको परमानेंटली वही पास करते रहे। इन ईच बैच वी मेक डिफरेंट सेपरेट वीडियोस, राइट? और उस सेपरेट वीडियोस के लिए जो है यू हैव टू वेट, यू हैव टू कीप पेशेंस। कभी आपने सोचा है कि 1 घंटे की वीडियो आप कैसे बनाओगे? इट्स ऑलवेज इजियर टू सजेस्ट अदर्स देन टू डू द सेम थिंग्स, राइट? सो डोंट ट्राई टू सजेस्ट, डोंट ट्राई टू टीच. Stick to your video, stick to your syllabus, and I am here. And once again I promise that your syllabus will be completed within time. And एक बार फिर से ये बता दूं, you will get selection at any cost, right? If you are following me word for word, definitely you will be among the selected candidates. So don't worry, don't take pains, take it easy, right? Take it easy, enjoy your study, don't panic. क्लियर? चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पार्ट। एंड इन द सीरीज ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, टुडेज प्लेस इज किंग लियर, द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर हम आज शुरू कर रहे हैं। हियर ऑन द स्क्रीन यू सी देयर आर मेनी नेम्स रिटन। द फर्स्ट वन इज किंग लियर, द सेकंड इज द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर एंड किंग लियर? The play King Lear was written by Shakespeare. The play King Lear was written by Shakespeare and it was performed for the first time on St. Stephen's Day. St. Stephen's Day is celebrated on 26th December in Latin Church and on 27th December in Eastern churches. And it was first performed on St. Stephen's Day in 1606. 1606 में सेंट स्टीफेंस डे में शेक्सपियर का प्ले एक्ट हुआ था। कौन सा? किंग लियर, राइट? एंड इन 1623 it was included in the first folio under the title The Tragedy of King Lear, right? And the second title that you see here, History of King Lear, it is the revised version of Shakespeare's King Lear. And this version, the History of King Lear, was revised in 1681 by the poet laureate Nahum Tate. Nahum Tate revised Shakespeare's version of King Lear
एंड व्हाट डिड ही इनकॉर्पोरेट इन हिज हिस्ट्री ऑफ किंग लियर? उन्होंने क्या काम किया कि नाहम टेट ने शेक्सपियर की ट्रेजेडी को ट्रेजिक कॉमेडी में कन्वर्ट कर दिया, राइट? ट्रेजेडी को ट्रेजिक कॉमेडी में कन्वर्ट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए कि हु चेंज्ड द एंडिंग ऑफ किंग लियर? तो द फर्स्ट पर्सन हु चेंज्ड द एंडिंग ऑफ किंग लियर वाज नाहम टेट। ये नाम आपको याद रखना है, नाहम टेट एंडेड चेंज्ड द एंडिंग ऑफ किंग लियर। और चेंज्ड एंडिंग में उन्होंने क्या किया? इन द चेंज्ड एंडिंग किंग लियर वाज रीइंस्टेटेड। किंग लियर को दोबारा किंग बना दिया जाता है एंड कोर्डेलिया मैरीज एडगर। कोर्डेलिया एडगर से शादी कर लेती है। ट्रेजेडी को कॉमेडी में कन्वर्ट कर दिया था नाहम टेट ने इन 1681, almost 75 years after Shakespeare's original version. Shakespeare's play was total complete tragedy and A.C. Bradley put King Lear, the third greatest tragedy by William Shakespeare after Hamlet and Othello, right? And the third, it is in the sequence of the greatest tragedies. Nahum Tate changed the ending of King Lear. और अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा क्या चेंज किया था, then King Lear was reinstated, he became king again. और फिर होता यह है कि Cordelia जो है she marries Edgar. In the original version both Cordelia and King Lear die. दोनों मर जाते हैं। तो Nahum Tate changed not only the ending of the play but the title as well. टाइटल भी चेंज कर दिया था, right? In 1681 and around 150 years दिस चेंज्ड एंडिंग जो है परफॉर्म की जाती रही करीब 150 सालों तक। और फिर एडमंड कीन हु वाज एन एक्टर, एडमंड कीन रीइंस्टेटेड रिवाइज्ड शेक्सपियर्स प्ले और फिर उसको ट्रेजिक फॉर्म में ला दिया, राइट? उसको ट्रेजिक फॉर्म में ला दिया है 323 में। ही चेंज्ड सम पोर्शन ऑफ किंग लियर्स, एडमंड कीन। तो अगर ये क्वेश्चन आता है हु फर्स्ट चेंज्ड द ट्रेजिक कॉमेडी introduced by Nahum Tate into a tragedy, तो उसका आंसर है कि एडमंड कीन changed the ending, right? Changed the ending। इन्होंने ट्रेजिक कॉमेडी से ट्रेजेडी में इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद विलियम चार्ल्स मैक्रेडी का नाम है, उन्होंने पूरी तरीके से नाहम टेट के टेक्स्ट को पर्ज कर दिया था और शॉर्टर वर्जन पेश कर दिया शेक्सपियर के प्ले का, राइट? शॉर्टर वर्जन पेश किसने कर दिया? विलियम चार्ल्स मैक्रेडी ने। और फिर फाइनली सैमुअल फेल्प्स ने उसको पूरी तरीके से शेक्सपियर के वर्जन को ला दिया। सैमुअल फेल्प्स ब्रॉट द ओरिजिनल वर्जन ऑफ शेक्सपियर in 1845। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ शेक्सपियर्स किंग लियर एंड द चेंजिंग ऑफ किंग लियर्स। यहीं से कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हैं। और वो जो कई क्वेश्चन है हु चेंज द एंडिंग फर्स्ट, तो आपका आंसर है नाहम टेट। और अगर ये क्वेश्चन आता है विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस जो है सबसे ज्यादा बार कौन चेंज हुआ है, तो उसकी इंडिया तो भी आंसर किंग लियर है। और रेस्टोरेशन टाइम एक ऐसा टाइम है जहां पर ऑलमोस्ट शेक्सपियर्स प्ले जो है स्टेज तो हुए थे बट विद डिफरेंट सेटिंग्स एंड डिफरेंट एंडिंग्स। था जॉन ड्राइडेन चेंज्ड द प्ले। कौन सा प्ले चेंज किया था? उन्होंने द टेम्पेस्ट को चेंज कर दिया था। जॉन ड्राइडेन ने ही मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट पर एक ड्रामा भी लिख दिया था। तो रेस्टोरेशन जो है पूरी तरीके से एडिशन का पीरियड है। शेक्सपियर के वर्क्स, मिल्टन के वर्क खूब सारे एडिट हुए और डायरिस्ट जो थे परफॉर्म भी थे जो होते थे, तो प्ले उनको बोरिंग लगने लगे। और रेस्टोरेशन टाइम में जो फ्रेंच ड्रामा था उस टाइप के प्लेस फ्लरिश होना शुरू हुए थे एंड शेक्सपियर वाज कंसीडर्ड अ बिट ऑब्सोलीट। और इस ट्रेजिक हिस्ट्री, जो हिस्ट्री ऑफ किंग लियर है नाहम टेट की, बहुत सारे जो ड्रामेटिस्ट थे, जो एक्टर थे, उन्होंने उस चेंज एंडिंग को जो है रिजेक्ट भी किया था। बट एक ऐसा लिटरेरी डिक्टेटर था जिसका नाम आपको पता है, सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन सपोर्टेड द एंडिंग ऑफ किंग लियर बाय नाहम टेट। उसका सपोर्ट भी किया था और ये कहते हुए कि कॉर्डेलिया का जो पेन है दैट इज अनबियरेबल, शी वॉज पनिश्ड अननेसेसरली, इसलिए उसको चेंज होना चाहिए। इट वॉज द स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, मीन्स ही सपोर्टेड द चेंज्ड एंडिंग ऑफ
किंग लियर। बाकी यहाँ पर ओरिजिनल प्ले जो है सैमुअल फेल्प्स ने पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस किया है। क्लियर? तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री हो गई उसके प्ले की परफॉर्मेंस की। और अब हम आते हैं शेक्सपियर के ओरिजिनल वर्जन पर, उसके सोर्स पर, और फिर उसकी स्टोरी पर, उसके समरी पर, उसके कैरेक्टर्स पर। ठीक है, चलिए। अगर हम शेक्सपियर के किंग लियर की सोर्स की बात करें तो सोर्स में ये नाम है जेफरी ऑफ मनमथ। जेफरी ऑफ मनमथ वाज अ हिस्टोरियन इन 12th century, right? Geoffrey of Monmouth was a historian in 12th century and he wrote a book Historia Regum Britannica, and in English it is called History of the Kings of Britain. Regum का मतलब होता है king and Britain का मतलब ब्रिटेन है। History of the Kings of Britain, and this book was written around 1136, right? Around 1136, and this was the primary source for Shakespeare's King Lear, right? इंग्लिश में जो कहते हैं हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन, यहीं पर एक जो किंग है, लीजेंड है, और उसका नाम है किंग लियर, जो उसका लीजेंड है उसी पर उन्होंने बेस कर दिया था। एंड इन हिस्ट्री इट इज सेड दैट किंग लियर जो है वो लियर ऑफ ब्रिटेन जो है, he was the king of Britain in 8th century BC, right? 8th century BC में किंग है। तो सेटिंग की बात अगर की जाए then the play is set in the 8th century BC, right? Play is set in the 8th century BC। डायरेक्ट सोर्स जो है वो है हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटेन, जेफरी ऑफ मनमथ का। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बुक, the King Lear, the play King Lear is based on another historian's book, or you know the name of that historian, he was none other than Raphael Holinshed. And I told you in my previous videos about Raphael Holinshed. He wrote a book, Chronicles of Britain, Chronicles of England, Scotland and Ireland. And in that book, he gave the story of this king, King Lear, right? और ऐसा कहा जा सकता है कि रैफेल हॉलिंशेड के बुक से भी उन्होंने एक सोर्स माना है। इसका मतलब ये है किंग लियर के वेरियस सोर्सेज हैं, जेफरी ऑफ मनमथ के अलावा रैफेल हॉलिंशेड। और अब अगर बात करें कि रैफेल हॉलिंशेड ने ये स्टोरी कहां से ली थी, तो रैफेल हॉलिंशेड ने स्टोरी ली थी एक और बुक से, right? Holinshed himself found the story in History of the King of Britain। तो इनको यहाँ से मिली और फिर इनको यहाँ से मिल गई शेक्सपियर को। अब हिस्ट्री ये जो क्रॉनिकल है इनकी, ये 1587 में लिखी गई थी, and 1587 was the time of William Shakespeare, so it could be assumed, ऐसा कहा जा सकता है, सोचा जा सकता है कि शेक्सपियर ने अपने टाइम में जो बुक अवेलेबल थी उसको पढ़ा होगा, क्योंकि शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं, खास करके इंग्लिश हिस्ट्री प्ले जो कि 10 है, वो इन्हीं पर बेस्ड हैं। तो एक प्ले जो ब्रिटेन की हिस्ट्री पर है वो भी उसी में बेस्ड होगा। और ओरिजिनली तो प्ले हिस्ट्री प्ले ही था, बट इसको जो हेमिंज और कॉन्डेल थे उन्होंने ट्रेजेडी के कैटेगरी में रख दिया था, और पूरे प्ले का ही नाम था द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर, राइट? तो ये हो गई है अब सोर्स की बात, और सोर्स की बात से हम आगे प्रोसीड करते हैं कैरेक्टर्स की लिस्ट पर। Characters of the play। पहला तो द प्रोटैगनिस्ट, जिसके नाम पर ट्रेजेडी है, और शेक्सपियर की ट्रेजेडीज उनके प्रोटैगनिस्ट के नाम पर होती हैं, जैसे कि हैमलेट, जैसे कि ओथेलो, जैसे कि रोमियो एंड जूलियट, जैसे कि टाइटस एंड्रोनिकस, जैसे कि किंग लियर, जैसे कि मैकबेथ। तो जो प्ले का प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है? वो है किंग लियर। अब अगर पेपर में ये आ जाए क्वेश्चन कि किंग लियर कहाँ का किंग है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? किंग लियर इज द किंग ऑफ ब्रिटेन। किंग ऑफ ब्रिटेन। सिटिंग हमने आपको बताई दी कि कब की सिटिंग है, 8th सेंचुरी बीसी की।
8th सेंचुरी बीसी में किंग है और वहीं की सेटिंग है। और किंग लियर हैज 3 डॉटर्स, राइट, 3 उसकी डॉटर्स हैं, गॉनरिल, रीगन एंड कॉर्डेलिया। गॉनरिल, रीगन एंड कॉर्डेलिया are the 3 daughters of Lear. And when the play starts, we see that King Lear wants to divide his kingdom into 3 parts. 3 parts में उसको divide करना है and he wants to give the equal share to each girl. सबको उसको equal share देना है। ऐसा हमको beginning में appear होता है, but बाद में ऐसा नहीं होता। कैसा होता है इसकी चर्चा अभी हम समरी में करेंगे, पहले हम कैरेक्टर्स को कर लेते हैं। और तो ये किंग लियर की फैमिली हो गई है और किंग लियर के साथ उसका एक फूल भी है जिसका नाम ही यहाँ पर फूल है। किंग लियर का एक वेल विशर है जिसका नाम है केंट। उनके अभी हम हस्बैंड्स के भी नेम पर आएंगे, बट पहले फैमिली कवर कर लें, फिर बाहर वालों को बाद में लाते हैं। वेलविशर है, उसका नाम है अर्ल ऑफ केंट। और अर्ल ऑफ केंट किंग लियर का वेलविशर इसलिए भी है क्योंकि जब किंग लियर डिप्राइव्स ऑफ कॉर्डेलिया फ्रॉम द प्रॉपर्टी, किंग लियर ऑब्जेक्ट करता है और ऑब्जेक्ट करने का रिजल्ट ये होता है कि केंट वॉज एग्जाइल्ड, खुद उसको एग्जाइल कर दिया जाता है, देश से निकाल दिया जाता है। बट केंट थिंक्स दैट Lear has become old and he cannot live alone, so he disguises himself. अपने ड्रेस बदल देता है और ड्रेस बदल करके नाम भी बदल देता है और अर्ल ऑफ केंट से नाम रख लेता है अपना काइस। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि what is the name of अर्ल ऑफ केंट आफ्टर डिस्गाइज, तो उसका नाम हो जाता है काइस। इस प्ले में 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो डिस्गाइज होते हैं। वैसे जनरली डिस्गाइज की जो थ्योरी है वो शेक्सपियर की कॉमेडीज में होती है, बट किंग लियर एक ऐसा प्ले है जहां पर 2 कैरेक्टर्स अपने नेम और वेश चेंज कर लेते हैं, डिस्गाइज हो जाते हैं। उसमें से पहला जो है वो है अर्ल ऑफ केंट। क्लियर, अर्ल ऑफ केंट जो है अर्ल है केंट का और उसका वेल विशर भी। अगला जो एक और फैमिली है, जो सब प्लॉट है, वो प्लॉट है ग्लॉस्टर का। ये ग्लॉसेस्टर लिखा है बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज ग्लॉस्टर एंड ग्लॉस्टर हैज 2 सन्स, राइट। ग्लॉस्टर जो है 2 सन्स हैं उसके, एक इलेजिटिमेट सन है और इलेजिटिमेट सन का नाम है एडमंड, और एक लेजिटिमेट है और उसका नाम है एडगर, राइट। एडगर और जो है एडमंड 2 उसके सन है। ग्लॉस्टर की जो स्पेलिंग है ये भी वेरिएशन है। एक स्पेलिंग इसकी होती है GLOUCES, GLOUCESTER, ग्लॉस्टर, और ये भी ग्लॉस्टर की स्पेलिंग आपको कहीं कहीं लिखी मिल जाती है। Edmund is the illegitimate son of Gloucester and Edgar is the real son, right? Earl of Gloucester और Edmund और Edgar उसके 2 sons हो जाते हैं, right? ये मेन कैरेक्टर हैं। अब हम हस्बैंड्स पर आते हैं, जो लियर की डॉटर्स के हस्बैंड्स हैं, जो लियर के सन इन लॉज हैं। पहले नंबर पर है ड्यूक ऑफ अल्बेनी, जो कि गॉनरिल का हस्बैंड है। ड्यूक ऑफ अल्बेनी ये है हस्बैंड टू गॉनरिल। और जो दूसरी सिस्टर है रीगन, रीगन के हस्बैंड का नाम है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल ये रीगन का हस्बैंड है। और कॉर्डेलिया की शादी होती है किंग ऑफ फ्रांस से। वैसे जब प्ले ओपन होता है तो 2 और शूटर्स होते हैं राजमहल में। 2 और जो है ऐसे लोग हैं
जो सोचते हैं कि जैसे प्रॉपर्टी का डिवीजन हो जाए और कॉर्डेलिया अपना हिस्सा पा जाए तो तुरंत ही शादी उससे कर लें। बट जब कॉर्डेलिया को कुछ नहीं मिलता है तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं और किंग ऑफ फ्रांस उसकी ऑनेस्टी पर बहुत खुश होता है और ऑनेस्टी पर खुश होकर के वो लियर को जो है कॉर्डेलिया से बिना किसी डाउरी के, बिना किसी दहेज के ही शादी कर लेता है। वो है किंग ऑफ फ्रांस। और इसके बाद जो है कैरेक्टर है एक ड्यूक ऑफ बर्गंडी जो उसका सूटर होता है, जो बाद में चला जाता है, और एक कोर्टियर है जिसका नाम है करन, सैम करन वाले। आजकल सैम करन बिल्कुल पूरी तरीके से फैशन में है आईपीएल देखने वालों के लिए। करन जो है वो एक कोर्टियर है, एक दरबारी है, और एक जेंटलमैन है। तो बस जेंटलमैन तो बहुत लोग होते हैं, आप भी जेंटलमैन ही हैं। ये मेन कैरेक्टर्स हैं शेक्सपियर के प्ले किंग लियर के। और अब हम किंग लियर के प्ले के कैरेक्टर्स के बाद उसकी स्टोरी पर आते हैं, सिनॉप्सिस पर आते हैं। और लाइक हैमलेट एंड ओथेलो सिनॉप्सिस आपको एक्ट बाय एक्ट सुनाने चल रहा हूं, इसलिए अटेंटिवली सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। समरी में एक्ट 1 पहले, और एक्ट 1 शुरू कहाँ से होता है आप को कल भी बताया था, पिछले वीडियोस में बताया था कि आप ओपनिंग सीन जरूर याद रखिएगा कि कौन से प्ले की ओपनिंग सीन में क्या होता है। जब प्ले किंग लियर ओपन होता है तो हम देखते हैं किंग लियर ऑफ ब्रिटेन एंड एल्डरली एंड वांटिंग टू रिटायर फ्रॉम द किंगडम। रिटायर होना चाहता है और इसलिए ही वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। और उसके हाथ में एक मैप भी है जो उसने पहले से ही डिवाइड कर रखा है। बट किंग लियर जो है ही इज अ फ्लैटरी लविंग किंग, उसको चापलूसी बहुत पसंद है, इसलिए वो अपने लड़कियों से ये जानना चाहता है कि हु लव्स हिम मोस्ट, उससे सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है। तो जो उसकी 2 डॉटर्स हैं रीगन और गॉनरिल। गॉनरिल गेट्स द फर्स्ट चांस बीइंग द एल्डर वन एंड शी प्रोफेसेस हर लव टू किंग लियर और कहती है आई लव यू मोर देन माई सेल्फ, आई लव यू मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा आपको ही प्यार करती हूँ। रीगन भी सेम स्टेटमेंट देती है और दोनों की बातें सुनकर के कॉर्डेलिया ये कहती है असाइड में कि आपने शादी क्यों कर ली जब आप सबसे ज्यादा इन्हीं को प्यार करती हो। खैर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वहां पर तीसरा नंबर कॉर्डेलिया का आता है और कॉर्डेलिया इज किंग लियर्स मोस्ट बिलवेड डॉटर, सबसे प्यारी बेटी है उसकी। और जब उससे पूछता है कि हाउ मच डू यू लव, तो वो कहती है एज मच एज अ डॉटर शुड लव हर फादर, जितना एक डॉटर को फादर से लव करना चाहिए। किंग लियर इरिटेट हो जाता है इस बात पर और कहता है कि सोच लो, दोबारा बताइए, दोबारा से सोच के बताइए। फिर वो कहती है नथिंग मोर। तब लियर ये बोलता है नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, नथिंग का मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा। And King Lear, being a flattery loving person and being a very short tempered character, he instantly divides the 3rd part into his 2 daughters share, उन दोनों को दे देता है। and Cordelia is deprived of any property, और जब वो डिप्राइव हो जाती है तो जो अर्ल ऑफ केंट है वो समझाने की कोशिश करता है किंग लियर को कि आप गलत कर रहे हैं। जो कॉर्डेलिया है उसका नाम ही कॉर्डियल है, शी इज वेरी पोलाइट, शी इज वेरी ऑनेस्ट, यू शुड नॉट डिप्राइव हिम, बट एग्जाइल में कर देता है, उसको देश से निकाल देता है। किंग लियर एडगर को उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। किंग ऑफ फ्रांस जो सूटर है उसका, जो वहां पर बैठा है, कॉर्डेलिया का भी मैरिज नहीं हुई है, बाकी 2 डॉटर्स उनकी मैरिज हो गई है, कॉर्डेलिया की डॉटर जो है उसकी मैरिज होनी है। किंग ऑफ फ्रांस इज देयर एंड वाचिंग द ऑनेस्टी ऑफ कॉर्डेलिया ही इज वेरी मच इम्प्रेस्ड, उससे बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है और तुरंत ही शादी प्रपोज कर देता है और शादी हो जाती है। अगले में क्या होता है कि लियर अनाउंस्ड कि ही विल लिव अल्टरनेटिवली विद गॉनरिल एंड रीगन एंड देयर हस्बैंड्स, 1 महीने यहाँ रहेगा और 1 महीने वहां रहेगा। He reserves to himself a retinue of 100 knights. अब ये उसके साथ प्रॉब्लम है कि he is not alone but he wants to have 100 knights with him,
और ये 100 नाइट्स जो हैं यही उसके लिए खतरा बन जाते हैं। और यही प्ले जो है यही फ्यूडलिज्म है। फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते थे उनके पास नाइट्स होते थे, तो ये भी अपने साथ नाइट्स रखना इसलिए चाहता है कि दे विल हेल्प हिम आउट इन नीड, और अगर कोई उस पर अटैक करता है, हमला करता है, तो ये नाइट्स उसकी मदद करेंगे। 100 नाइट्स के साथ उसको रहना है अपने डॉटर्स के यहाँ, रीगन और गॉन्ड्रिल के यहाँ। कॉर्डेलिया को तो उसने निकाल ही दिया है। कॉर्डेलिया हैज गॉन टू फ्रांस विद हर हस्बैंड, वो फ्रांस चली गई है। अब he reserves to himself a retinue of 100 knights to be supported by his daughters Gondil and Regan, right? तो फिर होता ये है कि पहले वो गॉन्ड्रिल के यहाँ जाने की सोचता है। गॉन्ड्रिल एंड रीगन स्पीक प्राइवेटली, किंग लियर से बात नहीं करती, अलग अलग बात करती हैं, रिवीलिंग दैट देयर डिक्लेरेशन ऑफ लव वर फॉल्स, एज एवरीबॉडी नोज कि उनका लव ही अपने फादर के लिए फॉल्स था। उन्होंने झूठ बोला था प्रॉपर्टी लेने के लिए, और अब वो अलग से प्राइवेटली जो है डिक्लेयर कर देती हैं कि उनका लव तो टोटल फॉल्स था। एंड डिक्लेरेशन ऑफ लव वर फॉल्स एंड दैट द वेरी लियर एज अ फूलिश ओल्ड मैन, दे व्यू लियर एज द फूलिश ओल्ड मैन, उनके हिसाब से लियर जो बेवकूफ आदमी है, मतलब दे आर द डॉटर्स हु डिक्लेयर देयर फादर टू बी अ फूल, फूल उनको डिक्लेयर कर देती हैं, बिकॉज दे हैव क्या किया, उन्होंने लियर की प्रॉपर्टी में टोटल हिस्सा ले लिया है। तब तक एक नई सीन शुरू होती है ग्लॉस्टर की, जो सब प्लॉट है ग्लॉस्टर एडमंड और जो है एडगर का। दोनों क्या तारतम्य में बैठाए रहिएगा, नहीं तो अभी स्टोरी में कंफ्यूज हो गए, बहुत बड़ी स्टोरी है। ग्लॉस्टर का जो बास्टर्ड सन है, जिसको हमने बताया इलेजिटिमेट सन है, एडमंड, वो इलेजिटिमेसी पर अपने नाराज होता है और कहता है कि उसके इलेजिटिमेट होने में क्या फॉल्ट है उसकी। और ये जो चीज है ये उस समय की स्थिति का वर्णन शेक्सपियर यहाँ पर करता है कि इलेजिटिमेट सन्स, इलेजिटिमेसी और जो कपहोल्डिंग है, इट वाज वेरी नेचुरल इन दोज डेज, बहुत आसान था उन दिनों। एडमंड इज एन इलेजिटिमेट सन, और इसलिए उसको खुद पर ही नाराजगी है, खुद पर और समाज के नियम पर उसको नाराजगी है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है जिसके लिए वो बिल्कुल ही जिम्मेदार नहीं है। Edmund resents his illegitimate status and plots to dispose of his legitimate older stepbrother Edgar. Edgar उससे बड़ा है और ये प्लान बनाता है कि उसको किसी तरीके से डिस्पोज कर दिया जाए, और डिस्पोज करके जो है खुद प्रॉपर्टी का ऑनर बन जाया जाए, जो कि ग्लॉस्टर की है, क्योंकि ग्लॉस्टर जो है ही इज आल्सो अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर। उसके लिए जो है एडमंड को क्या करना है, एडमंड को एडगर और जो ग्लॉस्टर है उसके बीच में खाई बनानी है, दूरियां पैदा करना है, और इसके लिए जो है वो प्लान बनाता है। प्लान क्या बनाता है, द अर्ल ऑफ जो है वो लेटर फॉर्ज करता है, और लेटर फॉर्ज करके वो ग्लॉस्टर के पास ले जाता है, और फॉर्ज लेटर में ये है कि द लेटर हैज बीन साइंड बाय एडगर, ना कि एडमंड। ये फॉर्जरी का काम शुरू कर देता है, राइट। He tricks his father with a forged letter, making him think that Edgar plans to usurp the state. Usurp का मतलब होता है हड़प लेना। एडगर स्टेट को हड़प लेना चाहता है, ऐसा पत्र एक तैयार करता है। The Earl of Kent returns from exile in disguise. तब तक अर्ल ऑफ केंट जो है लौट आता है डिस्गाइज फॉर्म में, और जैसे कि आपको पता है नाम भी चेंज कर लेता है और डिफरेंट नेम के साथ लौटता है, और डिफरेंट नेम क्या है, डिफरेंट नेम है काइस। ये पॉइंट फिर आपको बता रहा हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम एंड इट कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन दिस ईयर, इसलिए यू हैव टू कीप इन माइंड द नेम का जो काइस। क्लियर, काइस जो है तब तक डिस्गाइज फॉर्म से लौट करके आ जाता है, एंड लियर हायर्स हिम एज हिज स्टीवर्ड, एज हिज सर्वेंट एट अल्बानी, जो ड्यूक ऑफ अल्बानी है, एंड गॉन्डल्स हाउस। लियर एंड केंट क्वारल विद ओसवाल्ड। ओसवाल्ड हमने नाम नहीं लिखा था, ओसवाल्ड इज द नेम ऑफ गॉन्डल्स सर्वेंट। तो लियर और केंट दोनों जो हैं ये सर्वेंट से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए डिग्रेडेशन कैसे हुआ है कि किंग जो है एक स्टीवर्ड से, एक जो अर्ल है एक सर्वेंट से झगड़ा कर रहा है, फाइट कर रहा है। गॉन्डल्स स्टीवर्ड
लियर को तब पता चल जाता है कि जो गॉनड्रिल है, लियर नाउ डिस्कवर्स दैट गॉनड्रिल हैज द पावर ऑफ द किंग एंड शी नो लॉन्गर रेस्पेक्ट्स हिम। पावर तो सबको करप्ट कर देती है, गॉनड्रिल भी करप्ट हो चुकी है अपने पावर से, इसलिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। शी ऑर्डर्स हिम टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द रेटिन्यू, कहती है कि इसको घटा लीजिए, जो 100 लोग आपके साथ हैं, पहले कहती है 50 कर लीजिए, फिर कहती है 50 ही क्यों, 25 क्यों नहीं, राइट। उसको रेटिन्यू घटाने का कहती है और रीजन ही देती है कि 100 नाइट्स ऑलवेज क्रिएट नॉइज इन द कोर्ट, हमेशा वो नॉइज क्रिएट करते रहते हैं, इसलिए इनको घटा लेना चाहिए। और इस पर जो है लियर को बहुत गुस्सा आता है। ही इज इनरेज्ड एंड ही डिपार्ट्स फॉर रीगन्स होम। अब गॉनड्रिल के पास नहीं रहेगा, अल्बेनी में नहीं रहेगा, अब उसको रीगन के घर जाना है, वहां चल देता है। द फूल रिप्रोचेस लियर विद हिज फूलिशनेस इन गिविंग एवरीथिंग टू रीगन एंड गॉनड्रिल एंड प्रेडिक्ट्स दैट रीगन विल ट्रीट हिम नो बेटर। फूल जो है, नाम तो उसका फूल है, बट इन द प्ले किंग लियर ही इज द वाइजेस्ट मैन। और वो पहले प्रिडिक्ट कर देता है कि आपने गलती तो करी ही है, आपने जो कॉर्डेलिया को कुछ नहीं दिया, बट आपको गॉनड्रिल और रीगन कुछ नहीं देने वाली हैं। आप रीगन के घर चलिए, लेकिन आपको वहां पर मिलेगा कुछ नहीं, रीगन इससे बेहतर आपको ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगी। और यहीं पर एक्ट 1 एंड हो जाता है, जहां पर वो अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करता है। एडमंड आकर के अपनी इलेजिटिमेसी को चैलेंज करता है, केंट एग्जाइल हो जाता है, कॉर्डेलिया फ्रांस चली जाती है, और गॉनड्रिल का जो ट्रीटमेंट है अपने फादर के प्रति वो बिल्कुल उजागर हो जाता है। ये सारा एक्ट 1 जो है ये शेक्सपियर के ट्रेजिक स्ट्रक्चर का एक्सपोजिशन होता है। यहाँ पर फर्स्ट एक्ट एंड है और अब शुरू होता है एक्ट 2। तो हमें एक्ट 2 के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन और बढ़ा देनी है और एक्ट 1 से एक्ट 2 पर पहुंच जाएंगे। क्लियर। अब एडमंड का रोल शुरू होता है, और अगर अभी आपसे मैं लास्ट में पूछूंगा कि हु इज द विलेन ऑफ द प्ले, तो बताइएगा। पहले सबका रोल्स और पहले समरी पूरी सुनते रहिए। एडमंड लर्न्स फ्रॉम करेन। करेन को भी आपको बताया था कि ही इज अ courtier। करेन से वो से पता चलता है कि देयर इज लाइकली टू बी अ वॉर बिटवीन अल्बानी एंड कॉर्नवाल। अल्बानी एंड कॉर्नवाल बोथ आर, कौन है दोनों? बोथ आर द सन्स इन लॉ ऑफ किंग लियर। अल्बानी इज द हस्बैंड ऑफ गॉनड्रिल एंड दूसरा जो है कॉर्नवाल, ही इज द हस्बैंड ऑफ रीगन। और जो है करेन बताता है कि a fight is going to take place between Albany and Cornwall, and that Regan and Cornwall are to arrive at Gloucester's house that evening। और Gloucester के हाउस दोनों आने वाले हुए हैं। And taking advantage of the arrival of the Duke and Regan, Edmund fakes an attack by Edgar। राइट, बहुत चालाक आदमी है। एक और एडगर का जो है एडगर का रूप बना करके कह लीजिए कि एक अटैक जो है पूरा प्रपोज करता है। एंड ग्लॉस्टर इज कंप्लीटली टेकन इन। ही डिसइनहेरिट्स एडगर एंड प्रोक्लेम्स हिम एन आउटलॉ। एडगर जो है एडमंड अटैक तो खुद करता है और बता देता है कि एडगर ने ऐसा किया है, और यहाँ पर उसकी एक शॉर्ट लिव्ड सक्सेस उसको मिल जाती है कि जो एडगर है इज डिसइनहेरिटेड, उसको निकाल देता है, अपनी प्रॉपर्टी से वंचित कर देता है और आउटलॉ उसको घोषित कर देता है कि he is no longer the real inheritor of Gloucester's property। इसका फायदा कौन उठा लेता है? एडमंड। क्लियर, ये एक्ट 2 में होता है। और बियरिंग Lear's message to Regan, Kent meets Oswald again। Regan जो है मैसेज किंग लियर का केंट लेकर के आया है और रीगन के यहाँ, लेकिन वहां पर उसको ओसवाल्ड पहले ही मिल जाता है, और ओसवाल्ड गॉनड्रिल का सर्वेंट था। मतलब गॉनड्रिल ने उसको रीगन के पास भेज रखा है कि फादर इज गोइंग टू यू नाउ एंड नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम एज आई डिड।
जैसा मैंने जो है उसकी केयर किया है, आप बिल्कुल वैसे ही केयर करिएगा। ओसवाल्ड से फिर कन्फ्रंटेशन हो जाता है ग्लॉस्टर के होम पर, एंड केंट एंड ओसवाल्ड quarrels with him, quarrels again and is put in the stocks by रीगन। रीगन क्या करती है, रीगन जो है केंट को स्टॉक्स में डाल देती है। स्टॉक्स एक वुडन जो स्ट्रक्चर होता है, और उसी वुडन स्ट्रक्चर में केंट इज पुट, केंट को उसी में डाल देती है, क्योंकि उसने ओसवाल्ड से झगड़ा किया है। और दूसरा रीजन ये है कि वो किंग लियर का सर्वेंट है, और इससे किंग लियर को भी उसे एक मैसेज भेजना है कि हाउ डिड शी ट्रीट्स किंग लियर्स या हर फादर्स स्टीवर्ड, हर फादर सर्वेंट, वो कैसा बिहेव करती है। मीन्स सिचुएशन इज नो लॉन्गर इन द हैंड ऑफ किंग लियर, कुछ कर नहीं सकता है वो। When Lear arrives, he objects to the mistreatment of his messenger, but Rhaegar is as dismissive of her father as Gondrel was. अपनी असली चीज दिखा देती है कि रीगर और गॉन्डल में कोई डिफरेंस ही नहीं है। लियर इज enraged but impotent, गुस्सा तो बहुत आता है, but he is stripped of power, उसके पास पावर नहीं है। he is impotent, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकता है। Gondrel arrives and supports Rhaegar's argument against him. Lear yields completely to his rage. He rushes out into a storm to rant against his ungrateful daughters. और यहीं पर एक सीन है जिसको स्टॉर्म सीन कहा जाता है। स्टॉर्म दो तरीके से है, स्टॉर्म इन द माइंड ऑफ किंग लियर एंड स्टॉर्म इन द कंडीशन। और जब स्टॉर्म आता है, जब डार्कनेस आती है, जब नाइट आती है, दीज आर द सिंबल्स ऑफ ट्रेजेडी, और यही ट्रेजेडी का सिंबल होता है स्टॉर्म। उसके दिमाग परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। ही डजंट हैव एनी ऑप्शन नाउ, ही इज पावरलेस, ही इज इम्पोर्टेंट, एंड बोथ Gondrel and Rhaegar have rejected him, they have not allowed him to stay there। तो अब कहाँ जाए, वो क्या करे। he rushes out into the storm to rant against his ungrateful daughters, accompanied by the mocking fool। जो उसका फूल है वो उसके साथ है, और जब फूल देखता है कि लियर बहुत परेशान है तो एक स्टेटमेंट बोलता है। लियर का जो फूल है वो लियर को कभी अंकल नहीं बल्कि हमेशा नंकल कहता है, और नंकल का मतलब होता है नॉनसेंस अंकल। कहता है डोंट क्राई फॉर द क्राउन, गिव मी एन एग एंड आई विल गिव यू 2 crowns। आप मुझे एक अंडे दीजिए, मैं उसको तोड़ करके 2 करूंगा, और 2 जो है क्राउन बन जाएंगे। क्राउन के लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। वो एक जेस्टर है, और फिलोसफिकल ढंग से वो लियर से बात करता है। Kent later follows to protect him. Gloucester protests against Lear's mistreatment, with Lear's retinue of 100 knights dissolved. The only companions he has left are his fool and Kent. 2 ही लोग बचे हैं अब उसके साथ। वो कौन कौन है, वो है केंट और फूल, 2 ही साथी उसके बचे हैं। And wandering on the heath after the storm, Edgar now changed his dress. Edgar, in the guise of a madman named Tom O. Bedlam, right? क्या नाम रख लेता है एडगर, टॉम ओ बेडलैम। ये ध्यान रखिएगा। आपको बताया था कि 2 कैरेक्टर्स हैं जो अपना नाम चेंज करते हैं, BEDLAM, बेडलैम, राइट। Meets Lear, Edgar babbles madly while Lear denounces his daughters. Kent leads them all to a shelter। केंट सबको शेल्टर पर लेकर के आ जाता है, सबको संरक्षण मिला देता है, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लियर हैज बीन रिजेक्टेड बाय बोथ हिज डॉटर्स। और जो एडगर है वो दूसरे मामले में फंसा है। वो ये है कि एडमंड ने उसको जो है लेटर फोर्ज कर दिया था, आपको बताया ही था कि वो फोर्ज्ड लेटर लेकर के डिसइनहेरिट करवा देता है ग्लॉस्टर से। और अब 3rd एक्ट में आइए आगे की स्टोरी। एडमंड ही विलन है इस प्ले का, और इन द 3rd एक्ट जो क्लाइमेक्स होता है, ही बीट्रेज ग्लॉस्टर फर्स्ट। ग्लॉस्टर को सबसे पहले वो बीट्रे करता है, चीट करता है इन द 3rd एक्ट, राइट। एडमंड बीट्रेज ग्लॉस्टर टू
Cornwall, Regan, and Gondrel. He reveals evidence that his father knows of an impending French invasion designed to reinstate Lear to the throne. अब कैसे चीट करता है ये बता करके कि एक वॉर होने वाला है फ्रांस और किसके बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, मतलब कोर्डेलिया आएगी और क्या होगा, कोर्डेलिया आएगी और सबको मार करके और किंग लियर को दोबारा से किंग बना देगी। तो ये बात ग्लॉस्टर जो है बताता है। इम्पेंडिंग का मतलब होता है दैट इज अबाउट टू हैपन, इम्पेंडिंग फ्रेंच वॉर are designed to reinstate King Lear to the throne. In fact, a French army has landed in Britain. Once Edmund leaves with Gondrel to warn Albany about the attack, about the invasion, Gloucester is arrested, and Regan and Cornwall here did the most mischievous and gloomy act. यहाँ पर दोनों मिलकर के ग्लॉस्टर की दोनों आंखें निकाल लेते हैं, राइट, दोनों आंखें निकाल लेते हैं। और ऐसी सीन को स्टेज पर पिक्चराइज करना, पोर्ट्रे करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसलिए चार्ल्स लैम्ब ने कहा था किंग लियर इज एन अनएक्टेबल प्ले। किंग लियर एक ऐसा प्ले है जिसकी एक्टिंग ही नहीं की जा सकती। सच सीन्स कैन नॉट बी पोर्ट्रेड, कैन नॉट बी एक्टेड, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा चार्ल्स लैम्ब का मानना था। और इसी आधार पर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने नाहम टेन की रोमांटिक जो एंडिंग कर दी थी, जो ट्रेजिक एंडिंग को कॉमिक एंडिंग में बदल दिया था, उसको भी जस्टिफाई करवाया था। In the third act, Regan and Cromwell gouge out Gloucester's eyes. As they are doing this, a servant is overcome with rage by what he is witnessing and attacks Cornwall, जो है mortally wounding him. Regan kills the servant and tells Gloucester that Edmund betrayed him. Then she turns him out to wander the heath too. एक सर्वेंट आता है और वो कॉर्नवाल को मोर्टली वुंडेड कर देता है, घायल कर देता है थर्ड एक्ट में। फोर्थ एक्ट में क्या होता है, इन द फोर्थ एक्ट ऑफ द प्ले स्टोरी और आगे बढ़ती है। अब नंबर एडगर का आता है। एडगर इन हिज मैडमैन्स डिस्गाइज का नाम उसने बदल लिया है और लाइक हैमलेट नाउ ही इज मैड, ही प्रिटेंड्स टू बी मैड। नाम क्या उसका, टॉम ओ बेडलैम। और उसी ड्रेस में आता है, मीट्स हिज ब्लाइंडेड फादर ऑन द हीथ। उसी हीथ पर जहां पर स्टॉर्म सीन सेट है वहीं पर अपने फादर से मिलता है, हु इज टोटली ब्लाइंड नाउ, जिसको कॉर्नवाल और रीगन ने ब्लाइंड कर दिया है, उससे मिलता है। ग्लॉस्टर साइटलेस एंड फॉलिंग टू रिकॉग्नाइज फेल हो जाता है, पहचान ही नहीं पाता है कि एडगर है कौन। एडगर वाइस बेग्स हिम टू लीड हिम to a cliff at Dover so that he may jump to his death. He wants to commit suicide. और एडगर से कहता है, टॉम से कहता है उसको क्लिफ पे ले चले, चट्टान पे ले चले, जहां से वो नीचे कूद जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। और एडगर क्या करता है, एडगर उसको ले तो जाता है बट प्लेन पर खड़ा कर देता है और कहता है यहाँ से जंप करिए, और जंप तो करता है लेकिन जो वो प्लेन पर है तो उसकी डेथ कैसे होगी। Gondrel discovers that she finds Edmund more attractive than her husband, Duke of Albany. अब देखिए पावर के साथ जो है ड्यूक ऑफ अल्बानी जो है he is a gentleman, और जब वो जेंटलमैन है तो अब गॉन्ड्रेल को ये लगता है कि she should marry Edmund, उसे एडमंड से शादी कर लेना चाहिए, और he is more attractive than her husband, उसके हस्बैंड से भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, इसलिए चलो प्लान बदल लेते हैं। Whom she regards as cowardly, उसका हस्बैंड उसके लिए क्या है, cowardly है, कायर आदमी है। और एडमंड क्या है, एडमंड इज courageous, एडमंड इज bold और एडमंड इज brave। तो ऑप्शन बढ़िया है, अगर उसको बदला ही लेना है, अगर उसे सबको खत्म ही करना है तो एडमंड के साथ जा सकती है। अब देखिएगा विलेन एडमंड है कि गॉन्ड्रेल है, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है आपके लिए कि असल में विलेन है कौन, राइट। तो ये उसका अपना थॉट है। और अल्बानी हैज डेवलप्ड अ कॉन्शियंस,
He is disgusted by the sisters' treatment of Lear and Gloucester. इससे बहुत प्रॉब्लम होती है उसको, क्योंकि वो तो जेंटलमैन है, इस बात से बिल्कुल परेशान हो जाता है। एंड ही डिनाउंसेस हिज वाइफ, वो तलाक दे देता है अपनी वाइफ को, जाओ मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वो तो चाह ही यही रही थी और अल्बेनी कर भी वही देता है, डिनाउंस कर देता है उसको। गॉनरिल सेंड्स एडमंड बैक टू रीगन आफ्टर रिसीविंग न्यूज ऑफ कॉर्नवॉल्स डेथ। शी फियर्स her newly widowed sister may steal Edmund and sends him a letter through Oswald. जब ये पता चलता है कि कॉर्नवॉल की डेथ हो गई है, इसका मतलब कि अब रीगन भी विडो है, तो हो सकता है कि रीगन शादी न कर ले कहीं एडमंड से। अब एक एडमंड के दो जो है लवर बिलवेट्स हो गई हैं, राइट। ऐसा गॉनरिल को लग रहा है कि कहीं कॉर्नवॉल की डेथ के बाद शादी कहीं रीगन न करना प्रपोज कर दे एडमंड से, इसलिए अब जल्दी करना है। She feels her newly widowed sister may steal Edmund and sends him a letter through Oswald. Now, alone with Lear, Kent leads him to the French army. Kent उसको फ्रेंच आर्मी में लेकर के चला जाता है, which is commanded by Cordelia. But Lear is half mad and terribly embarrassed by his earlier follies. पहले जो उसने किया है अब उसको रिग्रेट हो रहा है और वो आधा पागल हो चुका है। वैसे हमारे हिसाब से तो शुरू से ही पूरा पागल था, लेकिन शेक्सपियर अब ये बताता है कि ही हैज बिकम हाफ मैड, और उसकी बुद्धि कब खुली, जब उसने अपने दोनों डॉटर से धोखा खाया है। इसीलिए कहते हैं बादाम खाने से बुद्धि नहीं, धोखा खाने से बुद्धि आती है। लियर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, और एज बढ़ने से भी बुद्धि नहीं आती, बुद्धि एक्सपीरियंस से आती है। क्योंकि लियर तो एक ओल्ड मैन है, लेकिन अंटिल नाउ ही वाज नॉट वाइज, बट अब वो वाइज होना शुरू किया है, राइट। अब वो वाइज होना शुरू किया है, उसकी बुद्धि फैलना शुरू हुई है, बट फिर भी केंट उसको फ्रेंच आर्मी में लेकर के जाता है। एंड फिर जो फ्रेंच आर्मी है इट इज कमांडेड बाय हिज ओन डॉटर कॉर्डेलिया। लेकिन अब किस मुंह से कॉर्डेलिया से कहेगा, लेकिन फिर भी डॉटर तो डॉटर होती है। सारी डॉटर्स रीगन की तरह और गॉन्डल की तरह नहीं होती। कॉर्डेलिया इज वेरी पोलाइट, वेरी अपोलाइट एंड वेरी ब्रेव, और इसीलिए उसने ऑनेस्टी के सामने सरेंडर नहीं किया था, उसने झूठ का प्यार नहीं जताया था अपने फादर से। फिर भी लियर वहां पर जाता है। एट रीगन्स इंस्टिगेशन अल्बेनी ज्वाइंस हिज फोर्सेस विद हर अगेंस्ट द फ्रेंच। Gondrel, suspicious about Regan's motives, are confirmed and returned, as Regan rightly guesses the meaning of her letter and declares to Oswald that she is more appropriate match for Edmund. Edgar pretends to lead Gloucester to a cliff, then changes his voice and tells Gloucester he has miraculously survived a great fall. Lear appears by now completely mad. He demands that the whole world is corrupt and runs off. समझ आया कुछ कि नहीं? पूरी तरीके से पागल हो चुका है लियर, और आपको बताया ही था कि क्या हुआ है। एडगर उसको लेकर के गया है और कि क्लिफ पर, कि वहां से उसको जो पुश कर देगा, वो जंप कर जाएगा, मर जाएगा, बट उसने कुछ ऐसा किया नहीं है। ओसवाल्ड फिर आता है और ओसवाल्ड स्टिल लुकिंग फॉर एडमंड। रीगन के कहने पर ड्यूक ऑफ अल्बेनी ने फ्रेंच आर्मी ज्वाइन कर ली है, जो कि इंग्लैंड पर हमला करने के लिए आया। फ्रेंच आर्मी नहीं ज्वाइन की है, जो रीगन की आर्मी ज्वाइन किया है, ताकि वो जो है फ्रेंच की आर्मी के अगेंस्ट वॉर कर सके, फाइट कर सके। और ओसवाल्ड एडमंड को ढूंढते ढूंढते आता है। ऑन रीगन्स ऑर्डर ही ट्राइज टू किल ग्लॉस्टर but is killed by Edgar. एडगर उसी को मार देता है, जबकि हुआ क्या था कि रीगन ने ऑर्डर दिया है ओसवाल्ड को कि आकर के मार दे, किसको? ग्लॉस्टर को। एडगर ग्लॉस्टर का बेटा है, इसलिए ग्लॉस्टर इंस्टेंटली किल्स ओसवाल्ड। इन ओसवाल्ड्स पॉकेट Edgar finds the Gondrel's letter in which she encouraged Edmund to kill her husband and take her as his wife. क्या लिख दिया है बढ़िया सा चीज गॉन्ड्रेल ने, कि एडमंड को लेटर किस लिए देना है,
कि जाए ड्यूक ऑफ अल्बेनी को, एडमंड से कहे कि ड्यूक ऑफ अल्बेनी को मार दे और उससे शादी कर ले। ये लेटर गॉनरिल ने दिया है उस वर्ल्ड को कि जाकर के एडमंड को दे दे, और एडमंड को वो तो ढूंढ ही रहा है बट वो नहीं मिला, मौत से जरूर सामना हो गया। एडगर ने उसको मौत के घाट उतार दिया और चिट्ठी अपने हाथ में ले लिया। केंट एंड कॉर्डेलिया टेक चेंज ऑफ लियर। वो लियर का जो देखभाल करने का काम है वो केंट और कॉर्डेलिया के हाथ में है। whose madness quickly passes, और धीरे धीरे उसका दिमाग भी खत्म जो है सही हो जाता है। रीगन, गॉनरिल, अल्बेनी एंड एडमंड meet with their forces, right? Albany insists that they fight the French invaders but not harm Lear or Cordelia. ये स्टेटमेंट है अल्बेनी का कि हम फ्रेंच आर्मी से लड़ेंगे, कॉर्डेलिया और किंग लियर से नहीं, उनको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। The two sisters lust for Edmund, दोनों को अब एडमंड चाहिए, and who has made promises to both, कम चालाक नहीं है, दोनों से उसने वादा कर रखा है कि हाँ हम आपसे ही शादी करेंगे, रीगन से भी और गॉनरिल से भी। He considers the dilemma and plots the death of Albany, Lear and Cordelia. एडगर गिव्स कॉर्नरिल सिस्टर, कॉर्नरिल का जो लेटर है वो एडगर जो है अल्बेनी को देता है। द आर्मीज मीट इन बैटल, द ब्रिटिश डिफीट द फ्रेंच एंड लियर एंड कॉर्डेलिया आर कैप्चर्ड। एडमंड, अल्बेनी, इनकी फोर्सेस जो है फ्रेंच आर्मी को डिफीट कर देती है और इंग्लैंड वहां पर जीत जाता है, और कॉर्डेलिया और गॉनरिल को कॉर्डेलिया और लियर को कैप्चर कर लिया जाता है। एडमंड सेंड्स लियर एंड कॉर्डेलिया ऑफ विद सीक्रेट जॉइंट ऑर्डर्स फ्रॉम हिम रिप्रेजेंटिंग रीगन एंड हर फोर्सेस। ठीक, एक फेक लेटर उसने तैयार कर लिया है, एंड गॉनरिल रिप्रेजेंटिंग द फोर्सेस ऑफ हर स्ट्रेंज हस्बैंड अल्बेनी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पास कर दिया जाता है फोर्थ एक्ट में। फिफ्थ एक्ट में क्या होता है? द विक्टोरियस ब्रिटिश लीडर्स मीट एंड द रिसेंटली विडोड रीगन नाउ डिक्लेयर्स शी विल मैरी एडमंड। एडमंड से वो शादी करने वाली है। क्लियर? एडमंड से उसको शादी करना है, इसलिए जो है डिक्लेयर कर देती है। बट अल्बेनी एक्सपोजेस द इंट्रीग ऑफ एडमंड एंड गॉनरिल। अल्बेनी के पास तो लेटर है जो किसने दिया था? एडगर ने दिया था। गॉनरिल के पूरे प्लान को एक्सपोज कर देता है कि ये ऐसा ऐसा मेरे बारे में सोचती है। एडमंड एंड गॉनरिल एंड प्रोक्लेम्स एडमंड अ ट्रेटर। रीगन फॉल्स इल हैविंग बीन पॉइजन्ड बाय गॉनरिल। अब सिस्टर को ही जहर दे देती है, रीगन को ही जहर दे देती है ताकि एडमंड पूरी तरीके से गॉनरिल का हो जाए। राइट? Having been poisoned by Gonnerill and is escorted off stage where she dies. Edmund defies Albany, who calls for a trial by combat. अब combat होना है, आमने सामने का मुकाबला होना है, किसमें? एडमंड और अल्बेनी में। ऐसा एडमंड प्रपोज करता है। एडगर appears masked in an armor and challenges Edmund to a duel. मास्क लगा के रखा है एडगर ने, आता है और एडमंड को एक डुअल के लिए चैलेंज कर देता है। एडगर अपीयर्स मास्क्ड, मास्क पहन करके आता है, चैलेंज कर देता है, एंड एडगर वुंड्स एडमंड, उसको घायल कर देता है फैटली। दो एडमंड डजंट डाई इमीडिएटली, ऐसे लोग जल्दी मरते नहीं हैं। डजंट डाई इमीडिएटली। अल्बेनी कन्फ्रंट्स गॉनरिल, गॉनरिल से उसका सामना है विद द लेटर which was intended to be his death warrant. She flees in shame and rage. Edgar reveals himself and reports that Gloucester died off stage from the shock and joy of learning that Edgar is alive after Edgar revealed himself to his father. और finally Edgar अपने आप को expose करता है कि he is the real son of Gloucester, और इतना खुशी मिलती है ग्लॉस्टर को इस बात से कि उसकी डेथ हो जाती है ऑफ स्टेज। शॉक और जॉय दोनों कंबाइन हो जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है ऑफ स्टेज। गॉनरिल का भी प्लान जारी है। गॉनरिल हर प्लान थ्वाटेड कमिट्स सुसाइड कर लेती है। अब देखिए
कौन कौन मरा है अभी बाद में काउंट करेंगे। कमिट जो है गॉनरेल ऑफ द स्टेज, जब उसका प्लान फेल हो जाता है तो वो सुसाइड कर लेती है। द डाइंग एडमंड, एडमंड उधर जो है उसका मर रहा है एज ही वाज मोर्टली वुंडेड बाय एडगर। द डाइंग एडमंड जो है डिसाइड्स दो ही एडमिट्स इट इज अगेंस्ट हिज ओन कैरेक्टर टू ट्राई टू सेव लियर एंड कॉर्डेलिया। बाद में उसका भी दिमाग सही होता है और कहता है कि कॉर्डेलिया और लियर को बचा लिया जाए। बट हिज कन्फेशन कम्स टू लेट, और जब तक उनका कन्फेशन आता है तब तक इधर दोनों मर चुके होते हैं। राइट, सून आफ्टर अल्बेनी सेंड्स मेन टू countermand Edmund's order. Lear enters bearing Cordelia's corpse in his arms. तब तक स्टेज पर हम देखते हैं कि लियर कॉर्डेलिया की डेड बॉडी को लेकर के आता है स्टेज पर। राइट, और having survived by killing the executioners, Kent appears and Lear now recognizes him. Albany urges Lear to resume his throne, but as with Gloucester, the trials Lear has been through have finally overwhelmed him and he dies. फिर ट्रायल के बाद जो है खुद मर जाता है किंग लियर। अल्बेनी then asks Kent to and Edgar to take charge to the throne, कि अब थ्रोन किसके पास जाएगा। अब जिंदा रहने वाले 3 कैरेक्टर हैं, ड्यूक ऑफ अल्बेनी, और ड्यूक ऑफ अल्बेनी के बाद केंट और एडगर। ड्यूक ऑफ अल्बेनी अब प्रपोज कर देता है कि थ्रोन जो है एडगर ले ले। फाइनली अल्बेनी ऑफ एडगर जो है implies that he will now become king. फाइनली अल्बेनी जो है, एक्चुअली 2 वर्जन है, क्वार्टो वर्जन और एडगर जो है जो फोलियो वर्जन में है वो अब किंग बन जाएगा और प्ले यहीं पर एंड हो जाता है। तो ऑल द 3 daughters of King Lear dies, Gloucester die, Edmund die and King Lear die. These are the deaths that took place कह लीजिए इन किंग लियर, और किंग लियर यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच हमारी इस छोटे से कोशिश को, छोटे से प्रयास को इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। ठीक है, आपके पेपर में बहुत काम आएगी, कई बार इसको सुनिएगा, एंजॉय करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्ले के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।